We have to take up Bayes' theorem next, which is very important. Okay, and for that first we need to understand and know partition of a sample space. You know what sample space is, which has all possible outcomes of a of a random experiment. Okay, so now here what they are saying is that a set of events e1 e2 say en, so many events are there, are set to form a partition of sample space S if ei intersection ej is a null set. Okay, means if we have these n sets, so इनका सबका pair wise individually one with the other intersection is null set, means they have nothing in common. First condition. Second is that if you consider union of all these sets, that will account to your whole sample space. You will obtain sample space from combining all these elementary events होते हैं फिर ये आपके. Okay, and probability of each of them has to be non-zero. तो इनमें से कोई भी event ऐसा नहीं है जो नहीं होगा. Okay, it cannot be an impossible event. So if these three conditions are being satisfied, then we say these E1, E2, En are forming partition of sample space, or the sample space has been partitioned. Alright, and from here comes another concept, that is theorem of total probability. Okay, so let E1, E2, En be forming the partition of a sample space. तो मतलब पूरी sample space इस ढंग से हम represent कर सकते हैं. ये सब इसके elementary events हैं. Then suppose that these events have all non-zero probability of occurrence. that happens क्योंकि वो जब उसने बोल दिया partition of space तो वो सब understood है. Right, then if there is any event A which is associated with this experiment or this sample space, okay, then probability of this event, probability of any event associated with such a random experiment or such a sample space which can be partitioned in this manner, which we can partition, will be obtained as probability of E1, first event happening, followed by A happening after that, conditional probability of A after E1, plus probability of E2 into probability of A after E2, probability of E3 into probability of A after E3, so on and so forth till here. Okay, so this is what we say, this is called finding sigma. Okay, sigma of this, summing up this, is giving us the total probability. ओके, सो इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि ऐसा क्या है कि ये एक इवेंट ए है जो एसोसिएटेड है किसी एक्सपेरिमेंट से, जिसमें पहले E1, E2, E3, सपोज 3, आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू 3 डिफरेंट वेज से कोई भी एक्टिविटी हो सकती है. तो उसके बाद ए होता है, तो देर इज अ चांस दैट ए कैन हैपन मे बी आफ्टर E1 और इट कैन हैपन आफ्टर E2 और मे बी आफ्टर E3. लाइक सपोज कि अगर हम 3 बैग्स रख लें, सपोज 3 बैग्स रख लें एंड 3 के 3 में कुछ ब्लैक एंड कुछ वाइट बॉल्स रख लें, राइट, अलग अलग कंटेंट्स. सो आप कहोगे कि यू हैव टू ड्रॉ अ वाइट बॉल. तो उसको ड्राइंग के लिए आपको पहले चूज करना पड़ेगा फ्रॉम द 3 बैग्स. सो इट डिपेंड्स अपॉन, कोई हो सकता है फर्स्ट बैग से निकाले, कोई हो सकता है सेकंड से निकाले, कोई हो सकता है थर्ड से निकाले. तो तीनों केसेस में प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल जब आपको निकालनी है तो आप कहोगे, उसमें ऑप्शन रख दोगे कि फर्स्ट बैग से निकली और सेकंड बैग से निकली और मे बी थर्ड बैग से निकली. तो और यू हैव अ चॉइस देयर. तो हम ये एडिशन में कन्वर्ट हो गया. ये हमने पहले भी काउंटिंग में भी ये सारे लॉज समझे और पढ़े हैं. ओके, दैट व्हेन वी हैव अ चॉइस देन वी add the number of cases, addition theorem. Okay, so maybe I chose bag 1 or I chose bag 2 or I chose bag 3. तो भी वो सारे केसेस में प्लस करते जाती हूँ. एंड फिर ये है बेसिक प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी थी, मेन प्रोबेबिलिटी, कि वो वाइट बॉल हो सकता है मैंने फर्स्ट बैग से निकाली, तो ये कंडीशनल आ गई ना, वो उसकी प्रोबेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन कि आप किस बैग से निकाली है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई. ऑलराइट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल आफ्टर टेकिंग फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ड्रॉइंग फर्स्ट वाइट बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग, ड्रॉइंग फ्रॉम द थर्ड बैग. तो ऐसे करके हम इसकी नेट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. सो दैट इज योर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. Now when we've understood this concept of total probability, then creeps in Bayes theorem. तो Bayes theorem क्या करता है? Bayes theorem भी हमारे लिए conditional probability निकालता है, but ये reverse निकालता है. Like I was saying कि हमें 3 bags दिए थे. Alright, 3 bags were given, उसमें black and white balls we had kept. अभी taking out white ball from bag 1 or bag 2, bag 3, that is easy for us to calculate. Why? Because उस केस में हमें contents पता होते हैं, right?
सो जब आपको बैग चूज करके उसमें से वाइट बॉल निकालनी है तो आपके लिए वो प्रोबेबिलिटी गेस करना इज इजी कि ओके मैंने बैग 1 चूज किया, बैग 1 में 5 वाइट थी, टोटल 10 बॉल्स थी, तो 5/10 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, सो इन दैट केस इट्स इजी टू फाइंड दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। या दूसरा कहेगा कि ओके मैंने बैग 2 चूज किया तो उसमें आई हैड 3 वाइट बॉल्स आउट ऑफ 10, सो 3/10 मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इन दैट केस फाइंडिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज ईजी। बट अगर कोई उल्टा पूछ ले, ओके हम कह दें कि हमने व्हाइट बॉल ड्रॉ की थी, अब ये बताओ कि मैंने बैग 1 से निकाली, बैग 2 से निकाली या बैग 3 से निकाली, सो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। तो वो उसके लिए हमें फेवरेबल केसेस स्ट्रेट अवे पता नहीं होते हैं, तो वी कैन नॉट इवेल्युएट दैट प्रोबेबिलिटी स्ट्रेट अवे। ओके, तो वो उल्टी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बेयर्स ने ये थ्योरम दिया है which easily gives us, because if you see ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन यूज कर रहा है, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी, ओके, एंड दिस इज फेवरेबल प्रोबेबिलिटी फॉर दैट केस। अभी पूरा एक्सप्रेशन देखते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, सो बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का वही रहा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो अभी हमने पढ़ी वो है, right? Okay, let me explain it like this. So first I'll read it from here, then I'll explain it in my terms. Okay, if E1, E2, En are some non-empty events which constitute partitioning of a sample space S, and दिस हमें पता है कि पार्टीशनिंग का मतलब ये है कि दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, उनका इंटरसेक्शन 0 होता है एंड उनका यूनियन S होता है, एंड सबकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होती है, दैट वी अंडरस्टैंड। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A, okay, is obtained as probability of EI into probability of A after EI upon sigma of probability of EJ, probability of A upon EJ, A by EJ. ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन है एक्चुअली ये टोटल प्रोबेबिलिटी का है, लाइक आई टोल्ड यू। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, सो लाइक एग्जाम्पल आई हैड गिवन यू कि दे आर 3 बैग्स, ओके, सो बैग 1, बैग 2, बैग 3, एक में 5 वाइट है आउट ऑफ 10, एक में 3 वाइट है आउट ऑफ 10 से लास्ट वाले में 7 आउट ऑफ 10 है, something like this, just assuming. Okay, so probability of drawing, if I say E1 by A, suppose E1, E2, E3 से मैंने डिनोट कर दिया बैग 1, बैग 2, बैग 3, सिलेक्टिंग बैग 1, सिलेक्टिंग बैग 2, सिलेक्टिंग बैग 3, एंड A से मैंने डिनोट कर दिया ड्रॉइंग अ वाइट बॉल। All right, so when I say probability of E1 by A, that means the ball drawn was ये given, जो by होती है after जो आती है ये given condition होती है, ओके, और ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होती है। सो बॉल बीइंग वाइट, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, okay, so that is what I'm looking for. Probability of E1 by A would mean probability that the white ball drawn was from bag 1, okay, so उसको मैं कैसे निकालूंगी, I would say that is equal to probability of choosing bag 1, वो निकालनी हमारे लिए easy है, okay, आउट ऑफ 3 बैग्स एक बैग हमने लिया, 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई, या वट एवर द केस में भी, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। ओके, फॉलोड बाय, अब पहले तो बैग लिया हमने, फिर हमने उससे बॉल निकाली, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एंड ये साइमल्टेनियस हो रहे हैं ना इवेंट्स, चूजिंग बैग 1, P probability of E1, then probability of A after E1 means white ball बैग 1 से निकाली, तो ये हमारे फेवरेबल केसेस आ गए। ओके, अब अपॉन, यहाँ अपॉन में हमारे टोटल केसेस आते हैं, तो यहाँ ऑल पॉसिबल वेज आई कुड हैव टेकन आउट वाइट बॉल, सो आई कुड हैव टेकन आउट वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग प्लस और फ्रॉम द सेकेंड बैग और फ्रॉम द थर्ड बैग, तो वो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A आफ्टर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A आफ्टर E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग से वाइट बॉल निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A आफ्टर E2, तो डिनोमिनेटर में पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी का जो एक्सप्रेशन था वो आ जाता है, न्यूमरेटर में जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो उसका ये आएगा। ओके, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। ओके, बट इसको आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाते हो, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड फॉर्मूला, एंड you will go through the examples children out here, and then I'm sending you few solutions and explaining you there much more.